आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट। हम लोगों ने इससे पहले भी इफेक्ट ऑफ करंट में केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ा है हमने क्लास 8th में। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को वहां जाना था हमने, वहां पे करंट के एक और इफेक्ट को जाना था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में भी जाना था और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इवन क्लास 10th में भी हमको पढ़ना है, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ these two topics, heating effect of current or Joule's heating effect and the next electric power, after that we will move towards the next chapter, and that is magnetic effect of current. Now let us start heating effect of current. If P and Q is a wire, P and Q is a wire, and its terminals are connected to two terminals of a battery. Two terminals of a battery, plus minus. ठीक है, तो यहां पे अब क्या शुरू हो गया? As we join this conductor with the terminals of a battery, the current start flow. The current start flow in the conductor. And as the current start flow in the circuit or in the conductor, it faces a hindrance, a oppose, due to the resistance of the conductor. Due to the resistance of the conductor, this hindrance to the flow of electron is called resistance. If current has to flow in the conductor, this resistance has to be overcome. Just like for move an object, mechanical energy we have to spend to overcome the frictional force. If I wish to push this duster, then we must have overcome the frictional force which is acting between these two surface of duster and wax. सर वीडियो नहीं आ रहा। What happened? वीडियो नहीं आ रहा सर। क्या हुआ भैया? Video is not clear. Video is not clear. It means you are facing a unstable network connection. You are facing an unstable network connection. That's why video is not clear to you. As your network strength will regain, your video quality will be crystal clear. Clear? Yes sir. Now, what is there which opposes the flow of current? In this conductor, there are so many electrons. Other than free electrons are present. Other than free electrons, there are so many electrons are present. Ions are present. Nucleus are present. They opposes the flow of electron through this conductor. And in case to overcome the resistance, we will have to apply some extra energy, and that energy get lost in the form of heat. In 1841, Joule studied experimentally the heating effect of current. That is, when electric current is passed through the conductor, electric energy is converted into the heat. Joule also derived the relation between the heat produced, electric current and resistance, and the time for which the electric current flowed in the circuit. And we have discussed, let us consider a wire PQ of resistance R. Let us consider a wire of resistance PQ. Let us consider a wire PQ of resistance
R. The resistance of this wire is R. And it is supplied by a battery of voltage V volt. We apply a battery of V volt. Then current starts flowing through this, and what will be the direction of current? Again from Positive, positive to positive to negative. from positive to negative terminals of the battery. Yes, Then sir. Yes, sir. in this case, we have applied a potential difference of V volt as shown. When current is passed through the conductor, to maintain the flow of current, work has to be done against the resistance. Work will have to done against the resistance. If the potential difference across the conductor is V and the electric charge Q flow through the conductor in time t, and the next thing, charge Q, amount of charge Q flow through the conductor for the time t second. For the time t. What do we have? We are having the first thing. First of all, by using formula V equals to W by Q, we can find the amount of work done to overcome the resistance will be VQ. We have get W equals to V into Q. W equals to V into Q. But we know Q is equal to I. Q by T, I equals to Q by T, or Yes, sir. Q equals to IT. From putting the value of Q in the equation 1, we get W equals to V, and at the place of Q, we replace Q by I into T. Then we have got the relation W equals to VIT. W equals to VIT. Now again, from Ohm's law. Yes, sir. Ohm's law. From Ohm's law, what we Equal to know? I. V equals to IR. Yes, sir. V equals to IR. Then we can replace V With by IR. IR. then amount of work done to overcome the resistance gap we will get in the form of heat. W equals to, at the place V, we have put IR into IT. Yet I square. W equals to I square T. IT. W equals to I square R T. Thick. This work done against the electrical resistance is converted into heat. Now, should I place from the, should I place? Now, the work done, to overcome the resistance, work done W against work done W against the resistance is converted into heat, H. So H equals to W equals to, we can write V by T, or H equals to W equals to I square RT, or equals to H equals to, you can also write, we can put from also
I equals to V upon R. We can also replace I. We can also replace I by V upon R. Then S equals to W equals to V square upon R. This is the formula for the heat produced in the circuit. Is it clear for all? Yes, sir. Very good. Now, let us think in the another way. सर कल ये पढ़ा चुके थे, What happened? रिवीजन हो गया। हाँ बोलिए भैया। अरे सर ये कल पढ़ा चुके थे, रिवीजन हो गया। रिवीजन हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है? H equals to VI T. H equals to I square R और एक फॉर्मूला क्या आया? H is equal to V square into T। ये तीन फॉर्मूला है। अब यहां से देखो, इस फॉर्मूला के अनुसार heat is directly proportional to the square of the current. Heat is directly proportional to the resistance and heat is directly proportional to the time for which current flows through the circuit. और इसके बारे में कल बताए थे कि V square upon R कब हुआ? जब हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज है और I स्क्वायर इंटू आर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब हुआ? जब हमारे पास I का वैल्यू गिवन है, I कांस्टेंट है। ठीक ना? यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक ना? अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। यहां तक में कोई दिक्कत? यहां पे जो हीट आएगा, यूनिट ऑफ हीट क्या होगा? यूनिट ऑफ हीट जूल। बोलो। जूल। जूल जूल सर। यूनिट ऑफ हीट इज जूल। तो ये भी एनर्जी का जो यूनिट होगा वही वर्क का यूनिट होगा, वही हीट का यूनिट होगा। सारे एनर्जी का तो एक ही यूनिट होगा, जूल। ठीक ना? अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक पावर की ओर। इलेक्ट्रिक पावर की ओर, ठीक है? इसको मिटाते हैं। यस सर। यस सर। What do you mean by electric power? The rate of doing work is called electric power. Doing Electric power is defined as the rate at which work is done by electric current. Electric power is defined as the rate at which work is done by electric current. Or in other way, we can also define it as the amount of electrical energy consumed by any appliances in unit time is defined as electric power. Clear? हाँ sir. Any doubt? Yes sir. No. What type of doubt you have? No sir. No doubt. Clear. Electric power is defined as electric power is defined as the rate at which electrical work is done. Rate at which electrical work is done in यूनिट टाइम, या रेट जब लिख दिए तो यूनिट टाइम लिखने की आवश्यकता
नहीं है, डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, बाय इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा है अब पावर इक्वल्स टू क्या हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम। ये तो क्लास 9th में भी हम लोग पढ़ चुके थे। पावर इक्वल्स Yes. टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टाइम अपॉन टाइम टेकन। टाइम। तो अब यहाँ पे वर्क डन क्या होता है हमारे पास, W, या हम लोग Yes. हमने आपको एक और डेफिनेशन बताया था कि इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हम लोग पावर को एक और तरीके से डिफाइन किए, तो उसको फॉर्मूला भी होगा पावर इक्वल्स टू एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या हो गया हमारे पास, W बाय T और E बाय T। एनर्जी हो, वर्क हो, चीज तो एक ही है। हाँ बोलो भैया। पूछना है सर, आप पहला प्लान में वर्क डन अपॉन टाइम टेकन और दूसरे में लिखे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, दोनों में टाइम टेकन या टाइम में टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिकल एप्लियंस वर्क, यस ओके। टाइम टेकन टू कंज्यूम दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो वही टाइम टेकन ही है वो भी, ठीक ना, टाइम टेकन ही कर देते हैं, ओके सर। ठीक है। अब देखो हमारे पास W इक्वल्स टू क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे VIT, पढ़े थे ना यस सर इसके पहले जैसे। तो Yes, अब sir. हमारे पास क्या P इक्वल्स टू W अपॉन T, और P इक्वल्स टू W के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं VIT अपॉन T. T। तो यहां से हमारे पास आ गया पावर इक्वल्स टू VI। आई रोमन नंबर का ज्ञान है ना, रोमन नंबर। हाँ सर, sir. 6 नंबर। 6 तो नंबर VI मतलब क्या होता है, क्लास 6। 6 नहीं तो सर क्लास 6 से ही तुम लोगों के पास पावर आ चुका है, ठीक ना। अब पावर का फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है, पावर इक्वल्स टू क्लास 6। यस सर VI हो गया, एनर्जी का भी फॉर्मूला यही हो जाएगा हमारे पास VIT। तो इसमें इसका यूज करके हम लोग पावर को लिखेंगे। अब फिर जैसे वहां पे हम लोग मैनिपुलेट किए थे, फॉर्मूला को चेंज किए थे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वांटिटी। तो अब देखो यहाँ पे पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VI है, ठीक ना। अब देखो V इक्वल्स टू IR होता है, तो अगर V के Yes, sir. जगह पे IR लिख दें तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I square. IR और पावर इक्वल्स टू I डिस्प्लेसमेंट है R। क्लियर है। फिर देखो पावर इक्वल्स हाँ टू सर। यहाँ पे V इक्वल्स टू IR दिए, यहाँ पे I इक्वल्स टू V अपॉन R कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे V इक्वल्स टू I अपॉन R कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो V इनटू V अपॉन R। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पावर इक्वल्स टू R। यहाँ पे तीन फॉर्मूला आ गया, हाँ सर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ये तीनों आपको, पहला इक्वेशन है पावर इन द टर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट, दूसरा है पावर इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड रेजिस्टेंस, एंड द थर्ड रिलेशन विद पावर एंड वोल्टेज अप्लाइड एंड रेजिस्टेंस, ठीक ना। तो अब जो गिवन क्वांटिटी होगा हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। अब बातें जो बच गई, ठीक ना। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर,
SI unit of power is watt. Watt. SI unit of power is watt. Watt. And one thing we have missed. What is the commercial unit of electrical energy? After this topic, we will discuss electrical commercial. हाँ बताना है बाद में, रुक जाओ. हमको लगा सर आप पूछे इसलिए हम बोल रहे थे. नहीं वो टॉपिक आ गया. यहाँ तक हो गया क्लियर? कर लिया आप लोग? यस सर. हाँ क्या सर. इसको जो थर्ड हम लोग का सर, हाँ बोलो. जो थर्ड फार्मूला निकला है V²/R, वैसा ही एक तो फार्मूला निकला था हीट एनर्जी में भी ना, V²/R. हाँ हीट वाले में भी था. तो अरे सेम तो चीज है भैया, एनर्जी अपॉन टाइम करना है. एनर्जी अपॉन टाइम, हीट अपॉन टाइम, वही तो हो गया पावर. वही तो वर्क डन ही तो हीट था हमारा ना. हाँ जो वर्क डन था तो वही वर्क डन का तीनों फॉर्मूला था. तो वहां भी 3 था, यहाँ भी 3 है. ठीक ना. आपको क्या गिवन है, कौन सा इक्वेशन इजिली आपको आंसर तक लेके जा सकता है, उसका यूज करना है. और जो अभी हम करवाए, बुक पढ़ के एक बार इस रिलेशन को खुद से अपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है. हो गया हमारा वर्क कंप्लीट. ठीक है. तो आइए अब हम लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं इसको. सर एक स्क्रीनशॉट कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. सर एक स्क्रीनशॉट लेंगे. हाँ पूछो. अरे रिकॉर्ड हो रहा है, बोल रहे हैं सर स्क्रीनशॉट. This class is being recorded. यस So सर. please maintain the decorum of this class and learn in a well cultured manner. ठीक ना. आप लोगों का भी आवाज अब रिकॉर्ड होता है, पता है या नहीं आपको? ओके सर. नहीं पता. नहीं उसके पता था वाले सर. यानी कि अब जो भी हमारा वीडियो देखेगा उसमें हमारा भी आवाज होगा और आप जो बोलते हैं पूछते हैं उसका भी आवाज होगा. तो आप लोगों को इस पे विशेष ध्यान रखना है कि क्लास को कैसे अच्छे वे में, ओके. ताकि दूसरों को भी लगे कि हाँ सामने जो पढ़ने वाला है वो भी एक अच्छा लड़का है. ठीक ना. ठीक है सर. ठीक है, इसको निकाल देते हैं. देखो ऐसा यूनिट ऑफ इज वॉट, यही है ना. अब इससे बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा? इससे बड़ा यूनिट किलोवाट. हॉर्स पावर. किलोवाट. एक तो हो जाएगा किलोवाट, फिर हो जाएगा इससे भी बड़ा मेगावाट. ठीक है ना. 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 watt. 1 megawatt equals to 10 to the power 6 watt. Watt. 1 hot power equals to 746 watts. 6 watt. ठीक ना. अब यहाँ पे इजिली देखो फॉर्मूला के अनुसार किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंस का पावर है, पावर इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, वर्क डन और एनर्जी अपॉन टाइम. ठीक ना. तो अब है हमारे पास हाँ सर. 1 watt equals to 1 joule अपॉन 1 टाइम. तो यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1 watt को. 1 watt क्या होगा? 1 watt is the power of an appliance which consume 1 joule of electrical energy per second. If power is 1 watt, then it is consuming an electrical energy of 1 joule in 1 second. What about when its power is 100 watt? Then it is consuming 100 joule of electrical energy in 1 second. If power of an appliance is 1 megawatt, then it is consuming 10 to the power 6 joule in 1 second. Clear? If your motor, your submersible motor
Yes, sir. 1 HP, 2 HP. 1 HP. What does it mean? Your motor is consuming an electrical energy at the rate 746 joule in 1 second. Clear? 1 watt को डिफाइन कर सकिएगा आप लोग? Okay, sir. Yes. हाँ सर सर वीडियो में जो जैसे हम बोलता लोग सर 1 कि वोल्ट को किए थे, एक उसी तरह से 1 वॉट का भी डेफिनेशन पूछा जाएगा। ठीक ना? आ जाओ, इसको क्लियर करते हैं। अब इसके बाद है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। व्हाट इज किलोवाट आवर? क्लियर है? Yes. अब हम लोग चेंज करते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू डैश जूल। 1 kilowatt hour equals to dash joule. Then first of all, we all know 1 kilowatt equals to 1000 watt. Yes. And what is the 1000. watt? Watt is nothing but joule upon time. Joule per second is watt. तो यहाँ पे watt के जगह पे हम लोग लिख देते हैं joule upon second. ठीक ना? अब देखो यहाँ पे क्या है 1 किलोवाट इनटू आवर। अब 1 आवर को हमको सेकंड में चेंज करना होगा। 1 आवर इक्वल्स टू 36,000 सेकंड्स। Yes. ठीक ना? तो इनटू हो गया यहाँ पे 3600 सेकंड। अब यहाँ सेकंड से सेकंड कट गया, बचा क्या हमारे पास 360000। यूनिट इज जूल equals to 36 into 10 to the power 5 joule और 3.6 into 10 to the power 6 joule। Yes, sir. यहाँ पे होगा 3.6 into 10 to the power 6 joule। इस रिलेशन को आप ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है इन बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो इन 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन पोर्शन लगभग कंप्लीट हो गया है। कल आप लोगों को हम इसका मटेरियल सेंड कर देंगे। ठीक ना? अभी टाइम बचा है क्या अपने पास? टाइम बचा है तो 1-2 टॉपिक पढ़ा देंगे। सर पढ़ा दीजिए, फिजिकल का क्लास है, कोई लिंक आएगा नहीं, क्लास करेगा भी नहीं। नहीं तो छोड़ देते हैं, दूसरा क्लास है तो फिर हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ नहीं बचा हुआ है, अब लगभग कंप्लीट हो चुका है आपका। थोड़ा सा जो भी बताना था वो अलग से बताना था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बता ही दिए, 1 किलोवाट आवर बता ही दिए। ठीक ना? अब सिर्फ क्या कैलकुलेटिंग का वर्क होगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना रुपीज हाँ, निकल सर। सकता है। हाँ, अब हम लोग जो है ना आगे न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे। आगे क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आप लोगों को होमवर्क ऐप के थ्रू होमवर्क सेंड करेंगे, उसको आप लोग जरूर बनाइएगा। 1 मार्क क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू सारा है और ज्यादा टाइम टेकिंग होता नहीं है। अगर आधा घंटा का समय देंगे तो 40-50 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आता हो तो। हाँ सर। अब आप पढ़ोगे ही नहीं बुक तो आएगा कहाँ से, फिर क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? ठीक ना? तो आप लोग बुक को एक बार पढ़िए, फिर जहां दिक्कत रह जाए कमेंट करके हमको वीडियोस में बोल दीजिए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक ना? ओके सर। ठीक है, हरिओम। मिलते हैं अगली कक्षा में। ओके सर। जी सर।